Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter, chapter number 3, that is formatting text in Word. Okay, so let's see, learning in this chapter, what is formatting, changing case, changing font size, color, typing, superscript and subscript, making text bold, italic and underline, aligning text, highlighting text, creating lists and applying text effects. So I hope you all are excited. Very nice. So children, we have learned to create documents, right? Create and documents in Word. Here we will learn how to format it. So first of all, let's understand what is formatting. So here you can see that formatting means to beautify the text, like changing the size and color of text, highlighting text, etc. That means you are beautifying it, okay, by changing the alignment, changing the size, color of the text, highlighting it, making the superscript or subscript whenever needed. So now let's see changing font. So font is the style and shape of the letters of the characters. To change the font, follow the given step. फॉन्ट बच्चों एक स्टाइल है, शेप है किसका, लेटर्स का, जो कि आप टाइप कर रहे हो. ओके, तो अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, सो लेट्स फॉलो द स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड चेंज द फॉन्ट. हाउ विल यू डू दैट? आपको यहाँ पे क्या करना है? सो फ्रॉम द होम टैब click on the drop down list arrow on the font command in the font group. Choose a font style from the list and click it to apply. Now here you can see that first of all आपको क्या करना है, होम टैब में आपके पास ग्रुप है एक किसका, फॉन्ट ग्रुप का. फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉन्ट कमांड पे क्लिक करना है एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो आपको लिस्ट दिखाई देंगी किसकी, फॉन्ट की. आप किसी भी फॉन्ट पे क्लिक कीजिए एंड आपका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, प्रीव्यू भी आप देख सकते हो और डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो. नाउ चेंजिंग फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज इज द साइज ऑफ द कैरेक्टर. एक होता है बच्चों स्टाइल चेंज करना फॉन्ट का, एक होता है साइज. नाउ यू आर चेंजिंग द साइज ऑफ द कैरेक्टर्स. टू चेंज द फॉन्ट साइज फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज. अगेन आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. From the home tab, click on the drop down list arrow on the font size command in the font group. उसी font group में home tab के आपको मिलेगा एक font size का drop down arrow. आपको उस पर क्लिक करना है and drop down list open हो जाएगी. Choose a font size from the list and click it to apply. Here you can see, आप यहाँ पे सारी लिस्ट देख पा रहे हैं किसकी, font size की. कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो साइज है किसका, टेक्स्ट का, वो चेंज हो जाएगा. नाउ डिड यू नो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल इन MS Word 2016. सो व्हाट इज 2016 स्टूडेंट्स? दिस इज द वर्जन ऑफ द विंडो. My bad student, this is not a window. Okay, this is the version of Microsoft Suite. Okay, so अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, 2016, 2019 भी है एंड 21 भी है. ओके, सो आपके डिफरेंट वर्जन है MS के. सो अभी यहाँ 16 में ये बताया गया है कि आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी चेंजिंग फॉन्ट कलर. यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, font size. Now let's see changing font color. To change the font color, follow the given step. First select the text to change the color. Are you noticing it कि जब भी आपको कोई चीज परफॉर्म करनी है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, you have to select that. Okay, so again you have to select the text. Again from the home tab you have to click on the drop down arrow where on the font color. This is the icon of the font color. ये आइकन है फॉन्ट कलर का, आपको इस पे क्लिक करना है. फॉन्ट ग्रुप में ही है, आपके पास कलर पैलेट आ जाएगा. यहाँ पे देखिए कलर पैलेट ओपन हो चुका है एंड नाउ यू कैन चूज एनी कलर वट एवर यू वॉन्ट. ओके, जब आप कलर सिलेक्ट करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी emphasizing में making text bold, italic and underline. So bold means darker text, italic means little bit slanted, okay, slanted towards right, and underlines means a line under the text. So first of all let's see how to make a text bold. To make a text bold, follow the given steps. Step number 1, select the text you want to make bold. From the home tab click on bold, that is the icon of the bold in the font group, and here you can see the change. Okay, very easy.
फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, बोल्ड आइकन पे क्लिक करना है, हियर यू कैन सी बोल्ड आइकन प्रेजेंट है, इस पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगेन अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है, टू मेक टेक्स्ट इटैलिक फॉलो द गिवन स्टेप, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक इटैलिक एंड फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन दिस आइकन दैट इज इटैलिक आइकन इन द फॉन्ट ग्रुप। ओके, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इस आइकन पे क्लिक करना है इटैलिक के, आपका टेक्स्ट हल्का सा स्लैंट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट, that is the italic. Okay, now making text underline, to make text underline what you have to do, you have to follow the given step। पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन द अंडरलाइन आइकन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। ओके, अगेन यू कैन सी तीनों ही आइकन बिल्कुल सीरीज में है, बोल्ड सीख लिया, इटैलिक सीख लिया, अंडरलाइन पे क्लिक कीजिए, इस तरीके से लाइन विजिबल हो जाएगी आपके टेक्स्ट के अंदर। एंड नाउ हियर इज अ टिडबिट, शॉर्टकट कीज कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, Control I for italic and Control U for underline. Okay, now let's see highlighting text. How can you highlight it? So बच्चों आप नोट्स बनाते हो ना, आपने कभी हाइलाइटर यूज किया है, आप हाईलाइट करते हो मेन पॉइंट्स को, उसी तरीके से we can highlight text in a document just as we highlight with a marker pen. To highlight the text, follow the given steps. Here, select the text, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, from the home tab click on the drop down arrow on the text highlight color command in the font group, a color palette appears, choose the color you want and click it to apply. Again what you have to do, first you have to select the text, after selecting text you have to click on this highlight color icon, okay, text highlight color icon, then you can see the color palette, you have to choose the color and this kind of highlighting you will get. Okay, now applying text effects, let's see। To text effects commands give special effects to the selected command। जो आपके टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं आपके टेक्स्ट को और ज्यादा मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। टू अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप। ओके, सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है, फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट्स, हियर यू कैन सी दिस इज द आइकन ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट। ओके, एंड यू कैन सी पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको ये देखिए टेक्स्ट इफेक्ट का आपको आइकन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट इफेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से टेक्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। चूज अ रेडीमेड इफेक्ट, आप रेडीमेड इफेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक ऑन द आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो ऑप्शन एंड चूज अ स्टाइल। सो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे कि आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, एंड आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट लाइक आउटलाइन, सो आपको यहाँ पे आउटलाइन के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड व्हेन यू विल शैडो, सो शैडो के लिए भी आपको अलग से पैलेट दिख गया होगा, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आया है, तो आप यहाँ से शैडो इफेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। नाउ टिडबिट, इन MS Word a special facility is provided for user and what is it which automatically checks spelling and grammar at the moment you are typing the text. So this is the major, you can say the beneficial thing whenever you are typing something in MS Word. So it will check instantly that you are doing correct or not. You are writing the correct spelling और ग्रामेटिकली मिस्टेक, ये सारी क्या कर लेता है, वो पता कर लेता है। A wavy red underline appears to indicate possible spelling errors and wavy green underline appears to indicate possible grammatical errors। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सपोज आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, सो स्पेलिंग जब गलत लिखते हो तो एक वेवी रेड अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है, और उसी तरीके से अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आती है, ठीक है, वेवी ही होती है वो भी। अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन और ग्लो तो आप देख चुके हो। Now let's see align text. Align your text to the left, center, right, justify of the page. You can do this by selecting the text and using the alignment option in the home tab. अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट को भी चेक कर सकते हो, कैसे आप इसे लेफ्ट में ले जा सकते हो, सेंटर में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो और जस्टिफाई भी कर सकते हो। यू कैन डू दिस बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग द अलाइनमेंट ऑप्शन इन द होम टैब। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइन कर सकते हो। कैसे, आपको होम टैब में जाना है, आपके पास यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट है, इन अलाइनमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये लेफ्ट है, सेंटर है, देन आपका राइट है एंड जस्टिफाई है। नाउ लेफ्ट अलाइन क्या करता है बच्चों, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द लेफ्ट अलाइनमेंट फ्रॉम पैराग्राफ अंडर होम टैब। यू कैन यूज Ctrl L एज शॉर्टकट कीज। इस तरीके से आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। सेंटर अलाइन में क्या होता है, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक सेंटर अलाइनमेंट फ्रॉम पैराग्राफ अंडर
Home tab, you can select Control E as shortcut keys. Microsoft Word 2016 is a word processing application. ये जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ये क्या करेगा, पूरा पूरा आपका सेंटर कर देगा. नाउ राइट अलाइन क्या करेगा, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड राइट क्लिक, click right alignment from paragraph under home tab. You can use Control R as shortcut keys. Control R से आपका टेक्स्ट राइट अलाइन हो जाएगा, और नहीं तो आप होम टैब में जाके राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं. जस्टिफाई में भी सेम है बच्चों, सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, क्लिक जस्टिफाई अलाइनमेंट फ्रॉम पैराग्राफ अंडर होम टैब, और नहीं तो अगर शॉर्टकट कीज के लिए आप Control J भी यूज कर सकते हैं. डिड यू नो आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो आर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट. ओके, क्विज मैनिया में हाईलाइटिंग इज डन डैश टेक्स्ट, सो आप यहाँ पे इसे देखिएगा. Now, changing case. The change case command is used to change the case of the text of the selected text without retyping again. अब change case क्या होता है बच्चों, अपर केस लोअर केस आपने सुना होगा, तो आप change case कर सकते हो. To change the case of the text, follow the given step. First, you have to select the text from the home tab, click on the change case command in the font group and choose an option. So you do have 4 or 5 options. First, select sentence case. This changes all the selected letters of this sentence in lowercase except the first letter. The first letter remains कैपिटल. तो बच्चे इसमें क्या बोला गया है, ये क्या करता है, जो आपके सेंटेंस में जो भी लेटर्स होते हैं उसके फर्स्ट लेटर को वो क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है, बाकी सबको लोअर केस कर देता है. लोअर केस में दिस चेंजेस ऑल द सिलेक्टेड लेटर इन स्मॉलर केस, और इसमें क्या करता है, जो सारे लेटर्स होते हैं उसे स्मॉलर केस में कर देता है. अपर केस में क्या होता है, दिस चेंजेस ऑल द सिलेक्टेड लेटर्स इन कैपिटल, सारे ही लेटर अपर केस में हो जाते हैं. कैपिटलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, कैपिटल जो आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, दिस चेंजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल. हर लेटर जो आपका हर वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है. एंड टॉगल केस में दिस रिवर्सेस द case of every letter. The letter in small are converted into upper, that is capital, and the letter in capital are converted into small. Toggle से पता चल रहा है अपोजिट कर देगा. ठीक है, now let's move forward and here you can see the cases. Okay, this is sentence case, ये है आपका लोअर केस, देन अपर केस, ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर वन, दैट इज टाइपिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. द टेक्स्ट दैट अपीयर्स अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट दैट अपीयर्स बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. ओके, जो आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के ऊपर आपको जो टेक्स्ट नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, एंड जो आपको बॉटम साइड नजर आ रहा है हल्का सा नीचे दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. For example, here you can see in x to the power 2, 2 is the superscript, and in h2o you can see 2 is the subscript. So select the character to change it to superscript or subscript. अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं then how will you do this? To do this you have to follow this step. First of all, from the home tab click on the superscript. Okay, you can see we do have 2 options here. This is subscript and you can see the another one is superscript. Okay, so this is subscript and this is सुपरस्क्रिप्ट. ओके, इसे चेंज कर लीजिएगा. नीचे वाला आपका सबस्क्रिप्ट होता है, ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट होता है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. ओके, आपको क्या करना है, आपने जैसे x लिखा एंड यहाँ पे 2 लिखा, तो इसे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं. इस तरीके से आप ये सबस्क्रिप्ट देखिए, ये है सुपरस्क्रिप्ट. नाउ लेट्स सी द अलाइनमेंट टेक्स्ट. ओके, सो the way in which the text is placed on a page is called alignment. Okay, so we can align the text as left, center, right, or justify. Left to align text with respect to the left margin, here you can see. Okay, and center to align text between left and right margin, this is the right way. And right to align text with respect to the right margin. So left में क्या होता है बच्चों, आपके left margin के according align होता है. center में left and राइट दोनों मार्जिन को वो फॉलो अप लेता है, एंड राइट में आपका राइट मार्जिन का फॉलो अप होता है. जस्टिफाई में टू डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स. ओके, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है टेक्स्ट को इवनली. नाउ टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप. हाउ विल यू डू दैट? सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइंड एंड फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब चूज एन ऑप्शन ऑफ अलाइन लेफ्ट, align right, center or justify. Here you can see these are the alignments given here. Okay, you can select it. First of all, to apply these alignments what you have to do, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा. सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इन ऑप्शंस में से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं एंड उन
अलाइनमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द टिडबिट शॉर्टकट कीज। कंट्रोल एल बच्चों लेफ्ट अलाइन के लिए है, कंट्रोल आर आपका राइट अलाइन के लिए, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइन एंड कंट्रोल जे टू जस्टिफाई अलाइनमेंट। नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन वर्ड फाइल। सो क्रिएटिंग लिस्ट, बुलेट और नंबर मेक अ लिस्ट लुक अट्रैक्टिव एंड क्लियर. A bulleted list had dot, circle or any other symbol to identify the item in a list. A number list has a number or a letter to identify the item in a list. तो बुलेट में कोई सीक्वेंस नहीं होता, आपका सर्कल या फिर डिस्क यूज करते हो, बट नंबर लिस्ट में ABC 1 2 3 4 सीक्वेंस चलता है. Now let's see how to create a bulleted list. To create a bulleted list, follow the given step. First of all, type the list. What you have to do? First of all, you have to type the list of the list. Okay, I mean type the items. Okay, my bad student, you have to type the items of the list and select them. After typing the item and selected them, from the home tab you have to click on the drop down arrow of the bullets. Here you can see, आपको यहाँ पे इसके drop down arrow पे click करना है. ओके, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? पैराग्राफ ग्रुप में. एंड नाउ यू कैन सी यू आर हैविंग एन ऑप्शंस ऑफ बुलेटेड लिस्ट. तो आपको जो भी पैटर्न चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए. सपोज ये वाला क्लिक करा है तो देखिए ये स्टाइल अप्लाइड हो गई है. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर आपको नंबर लिस्ट बनाना है तो क्रिएट अ नंबर लिस्ट, फॉलो द गिवन स्टेप, टाइप द आइटम्स ऑफ द लिस्ट एंड सिलेक्टेड देम. अगेन सेम तरीका, होम टैब में जाना है, आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है. किसकी? नंबरिंग लिस्ट के. पहला था बुलेटेड लिस्ट, बट इस टाइम आपको नंबरिंग लिस्ट पे क्लिक करना है जो कि पैराग्राफ ग्रुप में ही प्रेजेंट है. एंड सिलेक्ट अ नंबर स्टाइल. नंबर स्टाइल आपको ABC चाहिए, 1 2 3 चाहिए, रोमन में चाहिए. क्लिक करके आप देखिए ये अप्लाई हो चुका है. नाउ टिडबिट बच्चों, टू ऐड नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट, प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लास्ट आइटम एंड प्रेस एंटर की. द नेक्स्ट बुलेट और नंबर अपीयर्स ऑटोमेटिकली. अब बच्चों इसमें क्या बोला गया है? टू ऐड नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट. अगर आपको कोई नेक्स्ट आइटम ऐड करना है लिस्ट में, आप क्या करें? कर्सर को प्लेस कर दीजिए कहाँ पे? जो आपने लास्ट आइटम बनाया है, आई मीन लास्ट आइटम लिखा है. ठीक है, उस पर प्रेस एंटर कीजिए एंड आपका नेक्स्ट बुलेट और या फिर नंबर जो भी सीक्वेंस में चल रहा है वो अपीयर हो जाएगा. एंड आप क्या कीजिए? अपने जो भी आइटम आप ऐड करना चाहते हैं लिस्ट में उसे टाइप कर दीजिए. नाउ लेट्स सी ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग. यू कैन ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू टेक्स्ट बॉक्सेस, इमेजेस और टेबल्स टू मेक देम स्टैंड आउट. So steps to apply border and shading. Select the text to apply border and shading. Click on the design tab. जैसे आप home tab में अब तक सारी चीजें परफॉर्म कर रहे थे, you have to click on the design tab and click on all borders from the paragraph option. आप paragraph option देख पा रहे हैं बच्चों? उसके बाद आपको all borders पे क्लिक कर देना है. ठीक है, नाउ ऐड हेडर्स एंड फुटर्स. सो हेडर एंड फुटर्स कैन इंक्लूड पेज नंबर्स, डॉक्यूमेंट टाइटल्स and other important informations. Okay, so you can add headers and footers from the insert tab. आप insert tab में जाइए, आपको यहाँ पे देखिए header and footer का ऑप्शन मिल गया है. ठीक है, now to apply header and footer आपको क्या करना है? To apply header and footer in Microsoft Word 16, follow these steps. Open the document in which you want to apply the header. Okay, now click on the insert tab in the top menu, click on the header or footer drop down menu, select the desired header or footer option from the drop down menu. You can choose from predefined header styles or create your own custom header. Once you have added the desired elements to your header, click on close header and footer. To exit the header or footer editing mode and return to the main document view, your header footer will now be applied to the document. Now student, let me explain you what you have to do to apply header and footer. First of all, आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट ओपन करना है जिसमें आप हेडर को अप्लाई करना चाहते हो. उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद मैंने बताया था यहाँ पे हेडर और फुटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है. आपको क्या करना है? वहां से प्री डिफाइंड हेडर स्टाइल्स या फिर अपनी कोई कस्टम हेडर स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हैं एंड आप उसे ऐड कीजिए. एंड आपको किस पे क्लिक करना है? क्लोजर हेडर पे क्लिक करना है, क्लोजर हेडर और फुटर. एंड उसके बाद एग्जिट करना है. जब आप अपने मेन डॉक्यूमेंट में वापस आएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चेंजेस क्या होंगे वहां पे अप्लाइड हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी the changing of line spacing and paragraph spacing in Microsoft Word 2016. Change of line spacing and paragraph spacing of document can be done using the following steps. Okay, so select the text you want to change the spacing for or press Ctrl A to select the entire document. First of all बच्चों, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की पता चल रही है. अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है so Ctrl A सिलेक्ट कर लीजिए. ओके, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl A करते हैं. नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर
सेंटेंस, पैराग्राफ या वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपको उसे फॉर्मली ही, मतलब जैसे आप नॉर्मल सिलेक्ट करते हो वैसे सिलेक्ट करना होगा। ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द होम टैब। आपको होम टैब में जाना है, पैराग्राफ लॉन्चर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप पैराग्राफ यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करें, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन कर लीजिए। फ्रॉम द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं पॉइंट्स के, कितना लाइन स्पेसिंग आपको अप्लाई करना है। टू चेंज द लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट अ न्यू वैल्यू फ्रॉम द लाइन स्पेसिंग drop down menu, then choose from single 1.5 lines or double spacing, or you can choose multiple to set a custom spacing value. As I told to you कि आप या तो given spacing भी choose कर सकते हो, नहीं तो अपनी custom spacing value भी दे सकते हो। Same as बच्चों, to change the paragraph spacing you can use before and after field to specify how much space you want to add before or after each paragraph. You can use the up and down arrows or type a value directly into the fields. Okay, now let's see printing and print preview. Okay, so printing and print preview are two important features of a printer that allow you to view and print your documents. Here's how to show them. अब बच्चों देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो बना रहे हो, आप उससे हार्ड, वो आपने कंप्यूटर सिस्टम पे बनाया, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, बट व्हेनेवर यू आर प्रिंटिंग ऑन अ पेपर दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ओके, सो सपोज अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, ये वर्कशीट बनाई है, आप उसे प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज प्रिंटिंग। ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, click on the file menu in the top left corner of the screen. Select print from the drop down menu. Adjust any printing setting as needed. Example, number of copies, double sided printing. Click print to start the printing process. अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझाती हूँ कैसे करना है। आपने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि ये सेटिंग यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है कि आपको कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करने हैं, कितनी कॉपीज निकालनी है, डबल साइडेड चाहिए, सिंगल साइडेड चाहिए, एंड पेज साइज भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, आपका वो प्रिंट जिस भी प्रिंटर से कनेक्ट होगा उससे प्रिंट आ जाएगा। नाउ प्रिंट प्रीव्यू, ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रीव्यू इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है बच्चों, आपको ये दिखाता है कि आपका प्रिंट होने से पहले वो पेपर कैसा दिखेगा। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, सिलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग प्रिंट, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू। नाउ आपको डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक नहीं करना, फाइल पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक नहीं करना, अदरवाइज वो प्रिंट हो जाएगा एंड यू शुड नाउ be able to see a preview of your document including how it will be laid out on the page. ओके, बट प्रीव्यू देखने से पहले आपको टाइप ऑफ पेपर सिलेक्ट करना होगा, आप किस पेपर पे प्रिंट चाहते हो, A4, A3 लाइक दिस। नाउ वोकैबुलरी, फॉर्मेटिंग मींस टू ब्यूटिफाई द टेक्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स अबव द नॉर्मल टेक्स्ट एंड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट इज द वे इन विच द टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द पेज। नाउ फॉर्मेटिंग मींस आप अपने टेक्स्ट को ब्यूटिफाई कर रहे हो। सुपरस्क्रिप्ट में आपका जो टेक्स्ट होता है वो किसी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर दिखाई देता है, सबस्क्रिप्ट में नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे नजर आता है एंड अलाइनमेंट ये दिखाता है कि आपका जो पैराग्राफ, वर्ड या फिर पूरा जो भी है लाइन सेंटेंस वो आपका किस तरीके से अलाइन होगा आपके पेज के मार्जिन के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ हियर यू कैन सी इन अ नटशेल, सो formatting means to beautify the text like changing the size and color of the text, highlighting text, etc. Font is the style and shape of the letter of the character. Font size is the size of the character. Bold means darker text. Italic means text slanted towards right. Underline means a line under the text. Okay. Text effects command gives special effects to the selected text. The change case command is used to change the case of the selected text without retyping again. अब बच्चों देखिए फॉर्मेटिंग तो बता ही दिया था, आप अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई कर रहे हो। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है बच्चों, जब आप अपने फॉन्ट के आपके जो भी आपने वर्ड टेक्स्ट टाइप करा है उसका अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज में आपका साइज चेंज हो जाता है कैरेक्टर्स का। एंड बोल्ड क्या करता है, टेक्स्ट को डार्क बना देता है। इटैलिक वो हल्का सा स्लांट कर देता है एंड अंडरलाइन में एक लाइन दे देता है। टेक्स्ट इफेक्ट बच्चों आपके एक विजुअल इफेक्ट्स देते हैं। देयर आर 5 चेंज केस ऑप्शन इन वर्ड, ये आपको दिए हुए हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। द टेक्स्ट
that appears above the normal text अभी बताया था superscript and the text that appears below the normal text is called subscript. The way in which the text is placed on a page is called alignment and basically there are 4 alignment option. वो कौन कौन से है बच्चों? left, center, right and justify. A bulleted list has a dot, circle or any other symbol to identify the items in the list. A numbered list has a number or a letter to identify the item in a list. Okay. सो बच्चों ये चीजें हम कवर अप कर चुके हैं. आपको इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू डू प्रैक्टिकल ओके इन योर कंप्यूटर लैब. आप कंप्यूटर लैब में चाहिए, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए. आपको पता है कि कोई प्रोग्राम कैसे ओपन किया जाता है एंड खुद डॉक्यूमेंट बना के सारी फॉर्मेटिंग्स करने की कोशिश कीजिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक योर नॉलेज बाय डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ द गिवन चैप्टर. ओके, एंड नाउ आई एम गोना मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. Bye bye students.